دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پہلی بار الطاف بخاری کی پارٹی نے سری نگر کے شیر کشمیر اسٹیڈیم میں ایک بڑے جلسے کا انعقاد کیا کہ خاصی تعداد نے اس جلسے میں شرکت کی۔ الطاف بخاری سمیت اپنی پارٹی کے بڑے لیڈران نے جلسے میں شرکت کی اور عوام سے خطاب کیا۔ الطاف بخاری نے خطاب کے دوران کہا کہ وزیر اعظم نے ریاست کی بحالی کا وعدہ کیا ہے اور امید ہے کہ وہ اس وعدے کو جلد وفا کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ پرانا سیاسی نظام عوام کی پریشانیوں کو ختم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ 370 کے خاتمے کے بعد مقامی سیاسی جماعتوں نے لوگوں کی مدد نہیں کی۔ انہوں نے لوگوں سے ان سیاستدانوں پر بھروسہ نہ کرنے کی اپیل کی جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے عوام کا استحصال کیا ہے۔ بخاری نے سپریم کورٹ میں 370 کے لیے بہترین وکلاء کے ساتھ لڑنے کا عہد کیا۔ انہوں نے جو نئی سیاست شروع کرنے کی بات کہی اور کہا کہ ہم کوشش کریں گے اور جیلوں میں بند نوجوانوں کی مدد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے کوشش کریں گے اور کانٹریکٹ ملازمین کی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ جابرانہ طور ہندوستان سرکارن تم ساتن سون سپیشل سٹیٹس تو 35A ہٹائت لکن ہند دلن تو دماغن پہ تیت گاو لگوک یت میں پتہ بہ ہیکہ پورٕ کٔرِتھ کینٛہہ مگر بہٕ چھُس درٛامُت کہ اللہ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ مداوا کرو۔ مےٚ چھِ پتہ گاو چھُ سٮ۪ٹھاہ سوٚن مگر مداوا کرو ضروٗر۔ أسۍ چھِ درٛامٕتۍ سُہ مداوا کرنہٕ خٲطرٕ۔ ییٚلہِ لوٗکن مُصیٖبت آسہِ تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ قیادت تماشہٕ وٕچھنہِ گرن منٛز بیٚہہِ یِم بہانہٕ ہیٖلہٕ بہانہٕ کٔرِتھ کہ أسۍ چھِکھ نہ بنٛد تھٲیمٕتۍ سُہ چھُنہٕ صحیح قیادت کینٛہہ۔ میون مانُن چھُ تہٕ سانہِ قیادت مانُن چھُ کہ لُکن ییٚلہِ پریشٲنی آسہِ تمہِ ساتہٕ پزِ سیٲسی قیادتس برونٛٹھ کُن یُن۔ تۄہہِ سارنٕے چھُو پتہ بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ سیاست دان کینٛہہ، بہٕ چھُس اکھ عام انسان اکھ تۄہہِ ہیوٗ۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ خۄدایَن اوس سورُے کینٛہہ دیُتمُت مگر دلس منٛز اوس جذبہٕ کہ لُکن ہٕنٛز خدمت کرو۔ تمی خدمت کہ جذبہٕ شاید اگر یم سٲتھی مےٚ تمہِ ساتہٕ ساتھ دِہان نہٕ کینٛہہ آز وٕچھان نہٕ بہٕ یہِ جمع کثیٖر ییٚتنس کینٛہہ۔ تُہُنٛد ییٚتنس آسُن چھُ آز واریاہن کتھن ہُنٛد جواب۔ گۄڈنیُک جواب چھُ ہندوستان کِس قیادتس، ہندوستان کِس وزیر اعظمس، ہندوستان کِس ہوم منسٹرس، ہندوستان کِس سرکارس کہ جموں کشمیرٕکۍ لُکھ چھِ وۄنۍ یژھان کہ تمن گژھِ اکھ پنٕنۍ سرکار آسٕنۍ۔ 5 اگست گوٚو لُکن منٛز کیٛاہ پریشٲنی ٲس۔ بہٕ تہِ اوسُس واریاہن لیڈرن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ بنٛد پننِس گرس منٛز مگر ییٚلہِ ریٚتۍ پٔچھۍ لُکھ یِنۍ شروٗع گٔے سارنٕے ٲس فکر کہ الطاف صٲبا سانٮ۪ن نوکرین ہُنٛد کیٛاہ بنہِ، سانٮ۪ن بچن کیٛاہ بنہِ وۄنۍ، سانٮ۪ن زٔمیٖنن ہُنٛد کیٛاہ بنہِ وۄنۍ۔ جیل خان ٲسِکھ بٔرمٕتۍ، سٲنۍ نوجوان ٲسِکھ أڑۍ ہندوستان کٮ۪ن مختلف جیلن منٛز نِمٕتۍ، سٲنۍ سیٲسی قٲیدیٖن تہِ ٲسِکھ بنٛد کٔرمٕتۍ۔ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ کینٛہہ سٲتھی رلے أسۍ، اَسہِ دوٚپ کوٚر سونچ بِچار، اَسہِ دوٚپ نہ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ پزِ کرُن۔ أسۍ ٲسۍ پیاران تتھ سیٲسی قیادتس ییٚمۍ 72 ؤرین یتھ ریاستس پٮ۪ٹھ حکوٗمت ٲس کٔرمٕژ کہ شاید ما نیرن تِم نٮ۪بر، تِم ما کرن امہِ وقتہٕ لُکن ہٕنٛز بے بسی ہُنٛد، لُکن منٛز یُس مایوٗسی ٲس، لُکن منٛز یُس پریشٲنی ٲس تمیُک کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ چارٕ جوٗیی ما کرن۔ مگر افسوس تِم روٗدۍ پننٮ۪ن شیٖشوٗ محلن منٛز، تِم روٗدۍ پیاران کہ یِم لُکھ کیٛازِ موٗدۍ نہٕ یِتھ کٔنن تِمن ٲسۍ پٔتِم 40 ؤری گٔمٕتۍ تِمن ماران۔ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکر تہٕ بیٚیہِ تۄہہِ لُکن ہُنٛد کہ اَسہِ کوٚر تتھ فریبچہِ سیاست خٲر آباد۔ سانہِ قیادت چھُ فٲصلہٕ کوٚرمُت کہ انشاءاللہ أسۍ بناوو اکھ ٹیٖم اکھ یُس ییٚتہِ کٮ۪ن جیلن منٛز گژھِ، ہندوستانس منٛز جیلن منٛز گژھِ تہٕ یِمن پننٮ۪ن نوجوانن ہٕنٛدٮ۪ن کیسن ہٕنٛز ڈِٹیل کرِ کلیکٹ، ییٚتہِ مٲلِس ماجہِ سۭتۍ تِہنٛد بیٚیہِ ڈِٹیل کرِ کلیکٹ۔ أسۍ گژھو ہندوستان کِس وزیر اعظمس، أسۍ گژھو ہندوستان کِس ہوم منسٹرس، اَسہِ چھنہٕ کانٛہہ شرم، اَسہِ ؤنۍتن اَمہِ کھۄتہٕ کیٛازِ کہِ حل چھُ تٔتی۔ بہٕ چھُس ونان بیٚیہِ یِمن نوجوانن دِیِو اکھ بیٚیہِ لوہ لنگرس منٛز یِنس، نٔو زندگی شروٗع کرنس۔
आज तमन बच्चन वेरिफिकेशन रुकावन यमन बच्चन हूं तम दो जन्म गोमुत दपान चोन मोल चोन पितर या भी कहां से शामिल। हमारी कोशिश ये होगी कि हम उनके माँ बाप को, मस्जिद कमेटियों को, मोहल्ला कमेटियों को जिम्मेवार ठहराएं ताकि उन बच्चों को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया जाए। आज सारी लुक यतनस अम मूजूब आमत ताकि अल्ताफ बुखारी वातनाय तहज यह आवाज वजीर आजम हिंदुस्तान कि अस्कर स्टेट बहाल यह वाद तुहद प्राइम मिनिस्टर साहब, दिस इज योर प्रॉमिस, दिस इज द प्रॉमिस ऑफ द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काइंडली रेस्टोर द state of Jammu and Kashmir as it existed on the date of 5th August 2019। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला लखनऊ पहुंचने के फौरी बाद हवाई अड्डे से सीधे अखिलेश यादव की निजी रिहाइशगाह पहुंचे। बताया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने समाजवादी पार्टी के कौमी सदर से मुलाकात करके अहम सियासी उमूर पर बात की और मुल्क के मौजूदा हालात पर तबादला ख्याल किया। फारूक अब्दुल्ला अपने सीनियर रुफ़क़ा के हमरा यहाँ आए हैं और 2020 लोकसभा चुनाव में तीसरा महाज तश्कील देने के मामले पर एसपी क़यादत से गुफ्तगू की। इनके वालिद यादव साहब जो थे वो मेरे बहुत करीब थे, मैं उनको बहुत सालों से जानता था। जब इन्हें वज़ीर आज़म भी बनना था उस वक्त भी मैंने बड़ी कोशिश की थी कि ये प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, वो नहीं हुआ। और मेरे साथ ये पार्लियामेंट में बैठते थे। आज भी जब ये पार्लियामेंट शुरू हुई तो इनकी सीट मेरे साथ थी। मैं जब उनका निगम हुआ मैं नहीं आ सका। आज घर आया, अपनी तरफ से, अपने बेटे की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से इनसे शोक मनाया मैंने और उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की कि वो वहाँ पे जहाँ हैं वहाँ सुखी रहे और प्रभु उनको स्वर्ग में जगह दे। महंगाई बहुत है, बेकारी बहुत है, गरीबी बहुत बढ़ रही है। उसकी तरफ मैं ज़रूर उम्मीद करूंगा कि मोदी जी की सरकार कोशिश करेंगी कि इस लोगों की मुश्किलों को दूर करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गरीब आदमी पिस रहा है। आज गरीब नहीं है बल्कि आज जो तनख्वाह लेने वाला भी गवर्नमेंट मुलाजिम है उसकी हालत भी बहुत ख़राब है। उसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो उनकी तालीम को पूरा नहीं कर सकता, उनके कपड़े नहीं ख़रीद सकता जो स्कूल के लिए ज़रूरी है, घर के खाने के लिए उसके मुश्किल पड़ गई है, बेटी की अगर शादी होनी है तो वो मुश्किल है। इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट मुलाजिम बैठ गया तो फिर तो सरकार नहीं चलेगी। क्या बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर कोई तीसरा धड़ा भी तैयार होता हुआ मुल्क में आपको नज़र आता है? देखिए वो तो मैं अभी तो सवाल नहीं है, 24 तक देखिए क्या होगा, अभी तो मैं इस पर कुछ बात नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। सर कांग्रेस की एक यात्रा भी चल रही सर, बहुत तो मैं मुबारक करता हूँ राहुल जी को कि वो यात्रा कर रहे हैं। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रभु करे कि वो इस यात्रा से कुछ लोगों के लिए अच्छा सोचें और लोगों के लिए अच्छा करें। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर कश्मीरी पंडितों का सियासी इस्तेसाल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों को महज सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अरताग की खुर्रम हजरतबल दरगाह में हाजिरी देने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात सिर्फ बीजेपी इशारे के मुंतजर है, जबकि बीजेपी हर जगह मजहब की बुनियाद पर इंतखाबात लड़ रही है, जिसको इलेक्शन कमीशन अनदेखा कर रहा है। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनों से मुलाकात की और पार्टी अबूरात के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस वक्त जो सरकार इस वक्त बैठी हुई है वो हर चीज को उलट पुलट करने के लिए बैठी हुई है। अभी जो हमारे कश्मीरी पंडित पिछले कितने महीनों से वो जम्मू में दर बदर और खार हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर में हालात ठीक हो जाए तब तक हमें आप जम्मू में लोकेट कर लीजिए। कभी उनकी तनख्वाह बंद करते हैं, कभी उनका राशन बंद करते हैं। सिर्फ उनका जो दर्द है उसको इस्तेमाल कर बीजेपी वोट बटोरने के लिए। इनको किसी का कंसर्न नहीं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो चाहे कोई और हो, ये सिर्फ अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं और वोट बटोरना चाहते हैं। उसके अलावा इनकी पॉलिटिक्स और कुछ भी नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन ही उसका फैसला कर सकता है, मैं कोई फैसला कर सकती हूँ उसका क्या? ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है, उससे ज्यादा ये बीजेपी का काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी की वो एक ब्रांच बन गई है, उसका एक
हाथ बन गई है। क्योंकि अगर आपने देखा जो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मजहब के नाम पे जो बीजेपी की लीडरशिप प्रचार करती है, प्रोपेगेंडा करती है, और इलेक्शन कमीशन तमाशा देख रहा है। मुसलमानों को खुलेआम धमकियां दी जाती है मुल्क के अंदर, इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। तो इलेक्शन कमीशन तो कोई इंडिपेंडेंट नहीं है जैसे पहले होता था। इस मुल्क को, हिंदुस्तान को फख्र था। यहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको दुनिया में बुलाया जाता था कि हमें बताओ इलेक्शन कैसे करें। मगर आज हमारा इलेक्शन कमीशन इतना सबवर्ट किया गया है कि वो एक कठपुतली बन गया है। इसलिए इलेक्शन कमीशन वही करेगा जब उसको बीजेपी इशारा देगी इलेक्शन करना है तो इलेक्शन करेंगे। सुरवारी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद सियासी कारकुनों ने आज भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सुबह में एक तकरीब के दौरान ऐसे कई सियासी कारकुनान थे। ये लोग पहले दूसरे मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का हिस्सा थे। उन्होंने बीजेपी के जिला सदर नसीर लोन की मौजूदगी में भाजपा में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के लीडरों का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम आइंदा भी मुनक्किद किए जाएंगे ताकि बीजेपी वादी में ज़मीनी सतह पर मजबूत हो सके। आज जो ज्वाइनिंग थी ये यहाँ पर सोदनार जो एरिया है वहाँ से आए थे, बख्शी बल से भी आए थे। तो आज उन्हें ज्वाइनिंग किया। हमको तो कंटिन्यू यहाँ से ज्वाइनिंग, जब से मैंने डिस्ट्रिक्ट को संभाला, जब से मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, तो तब से मैंने कंटिन्यू शुरू किया यहाँ पे ज्वाइनिंग। तो इंशाल्लाह तो हम डोर टू डोर जाते हैं लोगों के पास, चाहे डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा हो, चाहे गुरेज, चाहे सोनावारी हो। तो हम तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं। तो जितने भी हमारे वर्कर हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट साहब इसने भी आज ये प्रोग्राम रखा था, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी टीम है जो मैंने परसों तश्कील किया था, तो उन्होंने ये प्रोग्राम रखा था। तो आज ये बेचारे यहाँ पर आए, इन्होंने जब ज्वाइन किया तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और पीसी जितने भी पार्टीज़ हैं, उन्होंने या कांग्रेस हो, उन्होंने आज तक हमको धोखा ही दिया। तो इन्हें जान के क्या कहा कि आज हम जो बीजेपी पार्टी है इसको हम आज ज्वाइन करना चाहते हैं अपने दिलों से। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज़ादी के 75 साल बाद भी यूटी के बाज़ इलाकों के अवाम सड़क से महरूम है। भलीसा के दूर दराज इलाके में सड़क नहीं होने से अवाम को मुश्किलात का सामना है। अवाम को मरीजों को अस्पताल ले जाने में मुश्किल पेश आ रही है। मकामी अवाम डिजिटल दौर में सड़क और एम्बुलेंस नहीं होने से परेशान है। मकामी अवाम ने हामला खातून को चारपाई के जरिए कादू पर इकट्ठा उठाकर गद्दू अस्पताल मुंतकिल किया। अवाम ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उन्होंने बताया कि मकामी कॉन्ट्रैक्टर ने सड़क की तामीर शुरू की, लेकिन ऐसे उसे मुकम्मल नहीं किया गया। सड़क के लिए उनकी जमीन छीन ली गई, लेकिन सड़क नहीं मिली। अवाम ने इंतजामिया और PMGSY से इलाके में जल्द सड़क तामीर करने की अपील की। तमाम लोगों ने अपनी जमीनें कटवा कर, लेकिन हमें गाड़ी का मुंह देखना। अब कितना दूर जाना पड़ता है आपको? अब हमको तकरीबन 5 किलोमीटर गाड़ी तक उठाकर 5 किलोमीटर रोड पे पहुंचना है। उसके बाद हमने गाड़ी को मुंह देखना है। जो डिलीवरी की प्रॉब्लम है, हमने इसलिए रोड के लिए हमने जमीनें कटवाई। और इतना स्ट्रगल करने के बाद आज फिर हमारी वही हालत है। इससे ना हमको कोई बेनिफिट है ना कुछ है। अगर खुदा न खास्ता कुछ बर्फ के दौरान ऐसे हो जाए तो हमारा क्या हाल होगा। गुरेज की एक और हामला खातून ने बांडीपुरा गुरेज रोड पर सरेरा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन बदकिस्मती से दरकार तिब्बी इमदाद न मिलने से नौमौलूद बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि खातून को बांडीपुरा जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। इस वाक़े के बाद इलाके के लोगों ने इंतजामिया और महकमे सेहत के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। देखिए रिपोर्ट। गुरेज की खवातीन के लिए ज़चगी का मरहला मौत से कम नहीं होता, क्योंकि इस सरहदी खित्ते में पिछले 11 साल से कोई गायनोलॉजिस्ट नहीं है, जिसके चलते यहाँ की हामला खवातीन अस्पताल के बजाय अक्सर सरेराह बच्चों को जन्म देती हैं। गुरेज के इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 35 साला नीलूफर के साथ भी यही कुछ हुआ। नीलूफर को कल सब जिला अस्पताल गुरेज से बांडीपुरा रेफर किया गया। ताहम नीलूफर ने बर्फ से ढके राजदान टॉप के करीब बच्चे को जन्म दिया। ताहम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नीलूफर को जिला अस्पताल बांडीपुरा में दाखिल किया गया, जहां उसे आज 11 बजे डिस्चार्ज किया गया। नीलूफर की रिश्तेदार और इलाके की BDC चेयरमैन फहमीदा बेगम का कहना था कि ये पहला वाकया नहीं है,
बल्कि इससे पहले भी गुरेज में डॉक्टरों की आदमी मौजूदगी की वजह से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। जबकि इलाके के एक समाजी कारकुन इरशाद सामून ने इलाके में एक गायनोलॉजिस्ट दस्तयाब रखने का अब फौज से मुतालबा किया, क्योंकि सिविल इंतजामिया इस मामले में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। 12 बजे तक पेशेंट उन्होंने हॉस्पिटल में बिठा के रखा, 12 बजे के बाद उसको रेफ़र किया तो हम पहुँचे राजधानी में जब पहुँचे उसकी डिलीवरी हुई, बच्चा मर गया वहीं राजधानी पर, वहीं उसका बच्चा मर गया। हमने पेशेंट को मसा यहाँ पहुँचाया है हॉस्पिटल में। कल से हमारा पेशेंट है, रात भर हमें पूरी रात हम यहाँ खड़े हैं, न पेशेंट कोई खाता है न कुछ पीता है, उसकी हालत कंडीशन ही उसकी ख़राब है। मैं यही पूछना चाहती हूँ वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के डीसी साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके जो सितमजरी कल हम पर हुई है, ऐसे हर जगह पर हर बार होता है, ऐसे विंटर में हर बार यही सितमजरी है, यही मतलब हर बार मरते हैं लोग। ये बदकिस्मती का मुकाम है गुरेज के अंदर। अब मुझे लगता है ये एक रिवाज बन गया है कि हमारी जितनी भी ज़चगी में मुब्तला जो हमारी ख़वातीन हैं, माँ बहनें, या तो उनको त्राकबल में बच्चे पैदा होते हैं या तो राजदान टाप में पैदा होते हैं। बदकिस्मती का मुकाम ये है, हमने जितनी भी सरकारें रही हैं पिछले 10-15 सालों से, हर बार हमारे लोगों ने ये डिमांड की कि वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन सिविल सरकार जो है इस चीज़ को नाकाम हुई है वहाँ रखने में। अब मेरी गुजारिश है फ़ौज से ही, हालांकि फ़ौज के एक हॉस्पिटल वहाँ चल रहा है, GOC जो नादरन कोर के, मेरे गुजारिश उनसे है, इससे पहले भी वहाँ आर्मी में एक गायनो करती थी मेजर रैंक की। अगर फौज हॉस्पिटल को थोड़ा ये अपने हॉस्पिटल को थोड़ा सा बढ़ा के और वहाँ इस फैसिलिटी को करते तो हमें फिर सिविल गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बदकिस्मती गवर्नमेंट, हालांकि सरकार दावे कर रही है कि हमने डॉक्टर्स वहाँ भेजे हैं, लेकिन डॉक्टर्स वहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सरकार वहाँ उनसे पूछती नहीं कि डॉक्टर ज्वाइन क्यों नहीं किया। ये बड़ी बदकिस्मती का मुकाम। BDC चेयरमैन ने इलाके में सेहत के शोबे की बिगड़ती सूरत हाल के लिए CMO बांडीपुरा और BMO गुरेज को जिम्मेदार करार दिया और BMO के फौरी तबादले का मुतालबा किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि बांडीपुरा गुरेज सड़क को कल ही एकतरफा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था और सड़क खुलते ही एक नवजायद बच्चा दुनिया में आने से पहले ही आगोश में चला गया। और यूं ये बात आया हो गई कि गुरेज की खवातीन के लिए माँ बनना कितना बड़ा मुश्किल मरहला है। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने कश्मीरी पंडितों की वादी वापसी के लिए एक जामिया और ठोस पॉलिसी बनाने का मुतालबा किया है। तंजीम के कारकुनान ने अपने लीडर RK भट्ट की क़यादत में आज जम्मू में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और बाज़ाबातकारी के अपने मुतालबात के हक़ में नारे बुलंद किए। पंडितों का कहना है कि वो वादी वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत को उसके लिए साजगार माहौल बनाना चाहिए और इस सिलसिले में पंडित बरादरी को एतमाद में लेना चाहिए। हम बार बार यही कहते आए कि एक ही फैसला अब होना चाहिए। ये बहुत हो गया कि कभी एक लोग की बात करते हैं, कभी दूसरे लोगों की बात करते हैं। हमारी ये उम्मीद है मोदी जी की स्ट्रांग लीडरशिप में एक कम्प्रहेंसिव रिटर्न का मॉड्यूल तय होना चाहिए, जिसके तहत कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। आपने देखा कश्मीर वैली के अंदर जो 6000 हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो आज जम्मू के अंदर पिछले 6 महीने से धरना पे बैठे हैं, रीज़न क्या है? अब मैं अपने हिसाब से जब इसको देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि आपने कभी 6000 लोगों को 60,000 में कन्वर्ट नहीं किया। आपने वापसी के लिए को इन्वॉल्व नहीं किया, और वो स्ट्रगल भी केवल एम्प्लॉइज की स्ट्रगल नहीं, पूरे कम्युनिटी की स्ट्रगल है। तो मेरा ये मानना है कि 12 साल में आप उस एम्प्लॉइज की स्ट्रेंथन नहीं कर पाए, आपने उनको 6000 से 60,000 नहीं पहुंचाया। इसलिए ये समय आ गया मोदी जी, अगर आपकी सरकार के अंदर कश्मीरी पंडित को मरना पड़ेगा, कश्मीरी पंडित को भागना पड़ेगा, ये शोभा नहीं देता है। आप वर्ल्ड को रास्ता दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, लेकिन एक नेशनलिस्ट कम्युनिटी अगर सड़कों पे ऐसी बैठी रहेगी, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। माना कि LG साहब के पास समय नहीं है पंडितों से बात करने के लिए, माना कि गृह मंत्री जी जल्दी में होते हैं, लेकिन आपके ऊपर हमारा आशीर्वाद से बना रहा है। हम तो देश की सरकार का गठन फैसला करते हैं, ये वो कम्युनिटी हमारा कि हम वोट बैंक नहीं है। लिहाजा मेरा अनुरोध रहेगा इस बात का कि एक वन टाइम रिहेबिलिटेशन का स्कीम बनना चाहिए, जिसके तहत कश्मीरी पंडित वापस जाएगा। दिल्ली में मुनक्किदा हज कॉन्फ्रेंस में तमाम रियासतों की हज कमेटियों के चेयरपर्सन शरीक रहे। हज करने का खर्च कम करने की गैर से यह नज़्म कराया गया था। बदकमरे में ये मीटिंग 2 घंटों तक चली। जम्मू कश्मीर हज कमेटी की चेयरपर्सन सफीरा बेग ने भी दिल्ली में मुनक्किदा हज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। सफीरा बेग ने बताया कि जम्मू कश्मीर में फ्लाइट्स के अलावा दीगर दिक्कतें हो रही है। इसी मीटिंग में उन्होंने मसाइल रखे, जिस पर वज़ीर हज ने तमाम मसाइल को दूर करने का यकीन दिलाया ताकि आज़मीन का हज का सफ़र सहूलत बख्श बन सके।
मैं तमाम स्टेट से जो हेड हैं, चेयरपर्सन से और साथ में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे यूटी और स्टेट के, उनके साथ ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा के साथ हमारी इंटरेक्शन थी, बहुत ही अच्छी रही, बड़ी अच्छे माहौल में रही और हर एक ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, अपने स्टेट का, अपना यूटी का रखा कि क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं हमारी। उसमें इन्होंने अश्योर किया कि हम वो भी सॉर्ट आउट करेंगे। जैसे मैं अपना बताऊँ, जो मेरी यूटी की इश्यूज़ थे, सबसे मेरा एक इशू था कि हमारी कंफर्टेबल फ़्लाइट नहीं है, वो लेके उस पर बात। इससे मज़ीद और बहुत सारे इश्यूज़ जो हाजियों के हैं वो डिस्कस हुए। तो हाजियों की इस सारे सफ़र को कंफर्टेबल बनाना और सस्ता बनाना जो है, ये प्रायोरिटी रही इस मीटिंग की। मैंने वो तमाम इश्यूज़ रेज़ किए जो मैंने एज़ चेयरपर्सन पहली मीटिंग में अपनी वहाँ पे जो मैंने एक ईमेल क्रिएट किया था और आम लोगों से सजेशंस मांगे थे। तो मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चली कि जो मुश्किलात वहाँ फेस करनी पड़ती हैं, लेडीज़ को क्या करना पड़ता है, बुज़ुर्गों को क्या करना पड़ता है, अकोमोडेशन के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स है, और फिर वो बस सर्विस के हवाले से क्या है, मेडिसिन में डॉक्टर्स के हवाले से क्या है, वो सारी चीज़ें, वो मौका मिला मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के सामने बात रखने का, मैडम के सामने। तो मुझे उम्मीद है कि उन्होंने उन सब चीज़ों को कंसिडर किया है और मुझे लगता है कि आप देखेंगे इंशाल्लाह जो आने वाला हमारा हज होगा, लोगों को कितनी राहत मिलेगी। आई एम 100% श्योर कि ये जो हज हमारे हाजी जब जाएंगे, उनका जो सफ़र होगा इंशाल्लाह वो कितना बेहतर होगा, मुझे पूरा यकीन है। बैलोकाबी क्रिकेटर परवेज रसूल का कहना है कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट का मयार अब काफ़ी बुलंद हो रहा है, जबकि स्पोर्ट्स काउंसिल की काविशों की वजह से दही सतह के क्रिकेट को भी काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच की तकरीब में परवेज रसूल ने शिरकत की। फाइनल मैच में एक दिलचस्प मुकाबले के दौरान बिजबिहाड़ा स्पोर्ट्स ने श्रीनगर के लगेट स्पोर्ट्स स्टेडियम को सुपर ओवर में 8 विकेटों से हराया। वक़ाबी शायकीन और खिलाड़ियों ने इस तरह के टूर्नामेंट्स के इनेकाद को स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए काफ़ी सूदमंद करार दिया। लोकल लेवल पे जो मैं कहूँगा, अगर आप देखेंगे हर जगह, अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, हर छोटे या बड़े मैदान में क्रिकेट ही क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट का एक बहुत बड़ा, मुझे लग रहा है, सैलाब जैसा है आज का। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें, मुझे लग रहा है कि लोकल ऑर्गेनाइजर्स की बहुत बड़ी उसमें एक योगदान है, मुझे लग रहा है कि। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप देखेंगे, जो कश्मीर में एक ड्रीम था, वो है कि कश्मीर के बच्चे कब टर्फ विकेट पे खेलेंगे। बिल्कुल, हर जगह क्रिकेट इससे पहले भी चलती थी, बहुत क्रिकेट चलती थी, बट सारे मैट पे चलते थे। बट आने वाले टाइम में पिछले 1-2 साल से हमने बिजबिहाड़ा में स्टार्ट किया, लॉन्ग बैक 4 साल पहले, तब से जाके अब अनंतनाग की बात करेंगे, हर जगह आप अनंतनाग में अब टर्फ देखेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होकर हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दरबार मूव की रिवायत को बहाल करने का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। जम्मू की ताजिर बरादरी ने दरबार मूव की रिवायत को बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि दरबार मूव की मनसूखी से कारोबार मुतासिर हुआ है। देखिए रिपोर्ट। यूटी इंतजामिया ने मई 2021 को जम्मू कश्मीर में सालाना दरबार मूव की रिवायत को मनसूख करने का फैसला किया। यूटी इंतजामिया के मुताबिक दरबार मूव से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। हुकूमत के मुताबिक 200 करोड़ रुपए सालाना खती रकम सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और दफ्तरी रिकॉर्ड को सरमाई और गरमाई दारुल हुकूमतों में मुंतकिल करने पर खर्च करना पड़ती है। जम्मू के ताजिर बिरादरी और जम्मू चैम्बर ऑफ एंड इंडस्ट्रीज के सदर अरुण गुप्ता ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि दरबार मूव से जम्मू में सर्दियों के मौसम में कारोबार बढ़ जाता था। उन्होंने दावा किया कि जीएसटी की वसूली भी तकरीबन 500 करोड़ सालाना तक बढ़ जाती थी। जब दरबार मूव होता था तो यहाँ से जो लोग परचेज करते थे, तो जम्मू में ये जो है कलेक्शन जो है वो बढ़ती थी, और वो जो कलेक्शन बढ़ती थी अल्टीमेटली उसका बेनिफिट भी गवर्नमेंट को ही जाता था। अगर मैं ये कहूँ कि अगर 200 करोड़ रुपए को हम लोग जो हैं वो सेव कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग 500 करोड़ रुपया लूज़ कर रहे हैं। इस बारे में विचार जो है किया हो। ताजिर तंजीमों के लीडरों का कहना है कि दरबार की मनसूखी से उनके कारोबार पर बुरा असर पड़ा। उनका कहना है कि दरबार मूव की मनसूखी से जम्मू में तकरीबन 6 माह क़याम करने वाले 80% अफराद की कमी आई है। उनका कहना है कि अगरचे यूटी के सर्द इलाकों से कुछ लोग सर्दियों के मौसम में जम्मू का दौरा करने आते हैं, लेकिन इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है।
बार मूव नहीं होगा। जो लोग कश्मीर में सेक्रेटरीट में थे वो अब कश्मीर में ही रहेंगे, तो उनकी वो लोग नहीं आ रहे हैं। जैसे वो आते थे उनके परिवार भी आते थे, तो उससे क्या होता था कि बिजनेस हम लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ता था। कुछ ही लोग आएंगे जिन लोगों के यहाँ सिस्टम है, जिन लोगों के घर हैं, तो वो ही लोग आएंगे यहाँ। अदरवाइज जैसे हम मान लें कि बहुत लोग आते थे, अब की बार उसमें भी जो है बहुत कम लोग जो है वो जम्मू आ रहे हैं अपना, इसलिए बिजनेस का तो फ़र्क पड़ेगा ही। जम्मू तो पठानकोट बन गया। जो उम्मीद थी हमें, चलो कश्मीर के लोग विंटर सीजन में जम्मू आते हैं, कुछ यहाँ पे एक हमारा भाईचारे का माहौल बनता है। कोई सर्दी में यहाँ कोई परचेजिंग करता है, होटल में रुकता है, कहीं वो खाना खाता है, तो कहीं कमरे दो बनाता है, तो जो वो ठही ठप हो गया, रुक गया काम। ताजिर तंजीमों का मुतालबा है कि LG इंतजामिया तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत करे और दरबार मूव की रिवायत को बहाल करे। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। कश्मीरी इन्वेंटर्स मुल्क भर में शानदार तरीके से अपना नाम कमा रहे हैं। मोहम्मद रफ़ीक आहंगर इन चमकदार सितारों में से एक है। हालांकि उन्होंने बहुत कम पढ़ाई की है, लेकिन वो 3 आलात का पेटेंट अपने पास रखते हैं और रफ़ीक इन्वेंशंस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से वो एक स्टार्टअप चलाते हैं। पेश है ये मुतासिर कुन रिपोर्ट। जुनूबी कश्मीर के रहने वाले मोहम्मद रफ़ीक ने कई मुफीद मशीनें और आलात बनाकर अपना नाम कमाया है। उन्होंने काफ़ी कारआमद मल्टीपर्पज़ टूल का पेटेंट हासिल किया है। कुल्हाड़ी, लकड़ी छीलने की छेनी, आरी, स्क्रू ड्राइवर, आलात को घिसने की फाइल और मुख्तलिफ चीज़ें जैसे कीलें वगैरह, दीवारों से या ज़मीन से पौधे निकालने का ये हमा मकसदी आला बनाने का कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है और ये तमाम आलात एक ही टूल में मिल जाते। पेड़ों से सेब उतारने के काम आने वाली सीढ़ी बनाने का एजाज भी उन्हें हासिल है। मेवा काश्तकारों के लिए ये सहूलत बख्श मशीन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। ये सीढ़ी न सिर्फ मजदूरी की लागत को कम करती है, बल्कि सेब तोड़ने वालों को फल उतारने में काफ़ी आसानी होती है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन मोहम्मद रफ़ीक पर फिदा है। इदारे ने मुल्क के टॉप 16 इनोवेटर्स में रफ़ीक का नाम शुमार किया है। एक लोहार घराने में पैदा होने वाले रफ़ीक का कहना है कि इख्तराआत का उनका सफ़र कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो हमेशा आलात से खेलते रहे हैं। आपने पढ़ा कितना है और ये नई चीज़ें बनाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? एक्चुअली मुझे बचपन से ये शौक़ रहा कि मैं जो अगर घर में कोई रेडियो है, कोई गैजेट है, मैं उसको तोड़ फोड़ करता हूँ। खुशकिस्मती की बात ये सर कि हम परिवार में बहुत ज़्यादा लोग हैं, 40 से, मतलब मेरे चाचा चाची वगैरह, फूफी फूफा, बहुत सारे बच्चे भी हैं उनके, तो तकरीबन कुल मिला के हम 38 तक आते हैं परिवार में। कोई मुझे डांटता नहीं, ये मेरी खुशकिस्मती है। कोई कुछ नहीं कहता। तो इनोवेटर नहीं बनते? नहीं तो कहाँ बनते हैं सर। अगर पढ़ाई कितनी की? पढ़ाई मैंने सर 8th पास किया बस। क्यों आगे क्यों नहीं गए? मेरे लिए वो अच्छा लगा कि बहुत है, तब अगर मैंने पढ़ा तो कोई नौकरी के चक्कर में ठोकरे खाता हूँ। इंसानी आज़ा के लिए सहूलत बख्श फावड़ा यानी कुदाल पेटेंट कराने का सहरा भी इन्हीं के सर जाता है। मोहम्मद रफ़ीक और भी किस्म किस्म की ईजाद के साथ तैयार हैं। उनका ये हनी एक्सट्रैक्टर भी काफ़ी मकबूल हुआ है। मोहम्मद रफ़ीक ने अखरोट क्रैकर बनाते हुए अपना स्टार्टअप शुरू किया था। अखरोट के सख्त खोल को तोड़ने वाली ये मशीन रफ़ीक के दोस्त मुश्ताक डार की इख्तरा है, लेकिन रफ़ीक ने इसमें काफ़ी अच्छी तब्दीलियां की हैं और उसे काफ़ी कारगर बना दिया। पहला जो पेटेंट है वो आपने हैमर बनाया? बिल्कुल सर, हैमर बनाया। उसके बाद ऑर्गेनाइज, उसके बाद लेडर, और एक बुखारी भी मैंने बनाया जो तुर्किश बुखारी से मिलती जुलती है। तो उसमें क्या है, वो तो 80,000 की है, ऊपर 80,000 से बाहर आती है। तो मैंने वही उसी को मतलब मद्देनज़र रखते हुए उसी को थोड़ा इनोवेटिव करते उसमें एक इंडक्शन कुकर भी नीचे रखा है। तो वो मान लीजिए कि रूम के अंदर मैं बोलता हूँ कि 100% हम नहीं कह सकते, 99% स्मोकलेस है रूम के अंदर। जब वो कंबंशन करता है तो बाहर 25 स्मोक निकलता है परसेंटेज। तो वो भी इस साल सर, पिछले साल श्रीनगर में बहुत गई। अभी आप क्या पास 3 पेटेंट है? बिल्कुल 3 सर, और एक पेटेंट होने वाला है सर। उसका तीसरे के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। 3 पेटेंट
और एक के लिए एप्लीकेशन फाइल की है। अखरोट क्रैकर खरीदने वाले लोगों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। अगर बच्चे कुछ अलग सोचते हैं, हो सकता है पहली बार कुछ तोड़ फोड़ हो जाए, लेकिन आगे जाके रफ़ीक जैसे हमारे इनोवेटर ऐसे ही बनते हैं। ये बच्चों के भी सीखने की चीज़ है और हमारे हीरो आगे यही हैं, क्योंकि यही हमें स्टार्टअप्स देते हैं। इनकी चीज़ें अब मार्केट में आ रही हैं और हमें सॉल्यूशंस मिल रही हैं। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। कश्मीरी कल्चर तवद्दुर और फोक थिएटर को फ़रोग़ देने की गर्ज से आज कुलगाम में जश्न का नज़्म किया गया। शाह कलंदर फोक थिएटर और ज़िला इंतज़ामिया कुलगाम के इश्तराक से जश्न कश्मीर फेस्टिवल बनाया गया, जिसमें कश्मीरी फनकारों, गुलकारों, स्टेज अदाकारों और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल बहियुद्दीन मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि फेस्टिवल के मुंतज़िम गुलजार अहमद और सदर म्युनिसिपल काउंसिल मुनीब जरगर भी मौजूद थे। फनकारों ने रंगारंग तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए और कश्मीरी ज़बान और सकाफत को उजागर किया। स्कूली तलबा और तालिबात ने भी रंगारंग मुजाहिरों के जरिए हाज़रीन को महसूस किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इधर पार्टिसिपेट किया, बिकॉज हमें अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था कि हम भी अपना टैलेंट किसी को दिखाए। सो आज हमें टैलेंट मौका मिला है कि हम अपने टैलेंट को आगे ले जाए। बिकॉज ऑफ सबकी सपोर्ट से हमने सब ने हमें सपोर्ट किया। हम लोगों में दिखाने के लिए कि क्या कैसे यहाँ पे ज़िंदगियाँ बसर हुआ करती थी, क्या हुआ करता था यहाँ पे, उसी सिलसिले में जो ये आज यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम इनेकाद किया गया है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया। बहुत सारे बच्चे भी आए हैं कि जैसा आप भी जानते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, अभी कुछ बच्चे अलग अलग इवेंट्स में शिरकत कर रहे हैं। शाह कलंदर फोक थिएटर और जो नॉर्थ जोन जो है कल्चर अकादमी का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनसिपलिटी ने जो है साथ में ये प्रोग्राम कराया। आप देख रहे हैं कि कितने डिफरेंट जो लोकल आर्टिस्ट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मुझे लगता है ऐसे इवेंट्स और करने की ज़रूरत है। ऑनरेबल अलजी साहब की जो डायरेक्शन थी कि दैट जो हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है जो कश्मीर का है वो पोर्ट्रे करने की ज़रूरत है। कबायली अमूर महकमे की जानिब से ST तलबा के लिए स्कॉलरशिप में इजाफा कर दिया गया है। इन बातों का इजहार महकमे के कोऑर्डिनेटर ने पुलवामा में एक वर्कशॉप के दौरान किया। ST तबके के एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद अमल में लाया गया। महकमे तालीम के इशराक से कबायली अमूर ने पुलवामा डिग्री कॉलेज में वर्कशॉप का एहतमाम किया। ST तबके से वाबस्ता तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप के हवाले से खसूसी जानकारी फराहम की गई। DD मेमरान के अलावा महकमे तालीम के अफसरान ने वर्कशॉप में शिरकत की। हमने 4 कैटेगरीज रखी है, ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C एंड ग्रुप D। ग्रुप A में जिस बच्चे को 30,000 मिलते थे उसको अब हम देते हैं 72,000 रुपये। ग्रुप B में जिस बच्चे को मिलता था 20,000 रुपये अब उसको 64,000 रुपये मिलते हैं। ग्रुप C में इसी तरह से बच्चे को 18 मिलते थे अब उसको 43,000 मिलते हैं। या इसी तरह से जिस बच्चे को 10,000 रुपये मिलते थे उसको हम अब हम उसको 29,000 रुपये देते। गर्ज और मकसद ये कि जितने जो हमारे बच्चे हैं, ख़ास तौर पर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो हम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो इन स्कीमों से फ़ायदा उठाएं। ये जानकारी अगर लोगों तक पहुँच जाए और इसको पहुँचाने के लिए एक मुझे लगता है कि जो वायबल एरिया है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ही है, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हर जगह पे हैं और उनमें वो कैपेसिटी है कि वो बात आम लोगों तक पहुँचाएँ और उनको चीज़ें अचीव करने के लिए वो अपने एफर्ट्स भी कर सकते हैं, उनको गाइड भी कर सकते हैं। जिला गांधरबल के बानिस्बल में कल्चर और साइंस फाउंडेशन की से अदबी तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर अली मोहम्मद निशर ने किताब 100 ड्रामा की रस्म इजरा अमल में लाई। इस मौके पर हसरत गुड्डा, निसार नसीब, अहमद अहद हाजरी और मोहम्मद अमीर भट्ट, शहबाज हाकबारी और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुशायरा भी मुनक्किद किया गया। किताब कश्मीरी में लिखी गई है और कश्मीरी ड्रामा का जो पस मंज़र और पेश मंज़र, माजी, हाल और मुस्तकबल है उस बारे में और ड्रामा के तनकीद के हवाले से लिखी गई है। ये किताब आज यहाँ पर रुनमा हुई, तो ये एक इजाफ़ा होगा हमारे ड्रामा नवीसों के लिए और ड्रामा पसंद करने वालों के लिए और अदीबों के लिए। कश्मीरी में तनकीद पे किताब लिखी है 100 ड्रामा, ये कश्मीर के लिटरेचर में एक बहुत ही बड़ा इजाफ़ा है। मैं चाहूँगा कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो ये किताब पढ़े ज़रूर, ताकि वो इंस्पायर हो जाएंगे कि ड्रामा कैसे खेला जाता है और ड्रामा में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। 100 ड्रामा, our drama,
हमारा ड्रामा ये क्या है, कहाँ से आया है, कितना अमीर है, इसकी क्या कितनी ज़बरदस्त रिवायत रही है, तो किन टंडों में ये गुज़रा है, किन मुश्किलात से ये होके आ गया हम तक किस तरह का है, और उसका फ्यूचर कितना ताबनाक है। मैंने ये कोशिश की है इस किताब में लिखने की। चौकाट किश्तवाड़ में उर्स हजरत शाह असरारुद्दीन के मौके पर सूफी शाम मुनक़िद की गई। यूटी के फनकार और मारूफ गुलकार ने प्रोग्राम पेश किए। इस शाम का एहतमाम डायरेक्टरेट टूरिज्म जम्मू, जिला इंतजामिया, किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज ने किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, डिप्टी कमिश्नर डोडा, SSP किश्तवाड़, SSP डोडा भी मौजूद रहे। असरारुद्दीन साहिब बहुत बार है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे इस दरबार में आके एक हाजिरी लगाने का मौका मिला है। 347वां उर्स मनाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से ये कितनी एक पुरानी बात है। यहाँ पे जो ज़ियारतें हैं ये जम्मू कश्मीर की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज़ियारतें हैं। किश्तवाड़ के हिस्ट्री के बारे में, किश्तवाड़ के बेमिसाल लोगों के बारे में जाने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहें। और मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड को भी मुबारकबाद देता हूँ। कठुआ पुलिस तीसरी हाफ मैराथन का एहतमाम करा रही है। इस सिलसिले में आज स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रोग्राम रखा गया। दौड़ में हिस्सा ले रहे नौजवानों में टी शर्ट्स तकसीम की गई। SSP कठुआ रमेश चंद्र कोतवाल ने बताया कि इतवार को होने वाला इवेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का होगा। एथलीट क्लब के ताउन से ये नस्ब किया जा रहा है। 5, 10 और 21.1 किलोमीटर के मैराथन होंगे। ये सब हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमको इस चीज़ के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और पुलिस वालों ने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं तो हर मंथ ऐसा एक आधा आयोजन होना चाहिए। युवाओं को अच्छा मौका मिलता है आगे कुछ करने का। हमारी बॉडी वगैरह रहती है। कितने सारे लोग यहाँ पे हिस्सा लेने के लिए आए हैं, तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हर साल ये नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में हम कंडक्ट करते हैं। जैसा आपको मालूम है कि लास्ट ईयर हमने 14 नवंबर को कंडक्ट की थी और बहुत ही सक्सेसफुल ये हाफ मैराथन रही थी। इसमें 3 कैटेगरीज में लोग दौड़ते हैं और एक आपकी 21.1 किलोमीटर रहेगी जिसमें लोग 10.55 किलोमीटर्स का दौड़ के 10.55 किलोमीटर्स का वापस आके इसी ग्राउंड में ख़त्म होगा। दूसरी कैटेगरी जो है वो 10 किलोमीटर की है, मेल फीमेल की। उसमें भी लोग 5 किलोमीटर तक दौड़ेंगे और 5 किलोमीटर बैक टू दी स्टेडियम। तो इसका उसके अलावा जो सबसे बड़ा ग्रुप होगा वो 5 किलोमीटर का होगा रन फॉर फन में। और इस हाफ मैराथन का मकसद जो है यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम है कठुआ पुलिस की तरफ से। कुपवाड़ा जिले में आज फौज की जानिब से खो खो टूर्नामेंट मुनक़िद किया गया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ स्कूलों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। कड़ाके की ठंड के बावजूद तालिबात ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों में काफ़ी जोश देखा गया। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय ने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर बैरून रियासत से आए खवातीन ने कहा कि कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं और अब लड़कियां भी हर फील्ड में सामने आ रहे हैं। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय, कमांडर 68 ब्रिगेड GKP कमांडिंग ऑफिसर 41 RR, DDC मेंबर राही मुस्तफ़ा के अलावा फौज और स्कूली तलबा तालिबात और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। सबको बहुत ही अच्छा लगा ये जो इनिशिएटिव लिया गया इंडियन आर्मी से टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। आई फील ऐसे और होने चाहिए कॉम्पिटिशन्स एंड ये लड़कियां अभी सिर्फ 12 ईयर्स की थी और इन्होंने इतनी कमेंडेबल परफॉर्मेंस दी है। आगे भी चल के ऐसे ही हम और मैचेस करेंगे। टीम में से 2 टीम आगे तक पहुंची है, उनमें से एक जीती। तो एक दूसरे को देख के ही आगे बढ़ा जाता है। तो मुझे आशा है कि ये लोग और आगे बढ़ेंगे और बदलाव लाएंगे हम यहाँ पे। ज़्यादातर जो बच्चे हैं ट्राइबल कम्युनिटी से है। हमें पहली बार हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिस प्लेटफॉर्म की वजह से आपके सामने हमारा जो बच्चों के टैलेंट है वो आया है। स्टेट लेवल तक भी होना चाहिए, ऐसे टूर्नामेंट्स होना चाहिए। अच्छा फील हो रहा है। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं 41 RR का कि जिसने हमें यहाँ पर मौका दिया आने का, और हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ एक ये गेम का भी एक गेम एजुकेशन का एक पार्ट है ये गेम भी, और हम ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है और कल तक स्टेट लेवल पर होना चाहिए।
वक्त हो गया एक ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मेढर सब डिवीजन में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा जमाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। महकमे बाल मेढर की जानिब से आज मेढर कस्बे के कोहलिद इलाके में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। SDM मेढर जहांगीर खान, SHO मेढर, नायब तहसीलदार मेढर और नायब तहसीलदार हरनी भी में शामिल थे, जबकि इस मौके पर भारी तादाद में पुलिस की नफरी भी मौजूद रही। इस दौरान SDM मेढर जहांगीर खान ने बताया कि 8 कनाल सरकारी अराजी को गैर कानूनी कब्जे से छुड़वाया गया। उन्होंने कहा कि आइंदा भी इस किस्म की कार्रवाई की जाएगी। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है जो ये आज हमने चलाई है मेंढर गोलर टाउन प्रॉपर में। प्रॉपर टाउन में कोई 8 कनाल ज़मीन आज हमने रिट्रीव की है, 6 कनाल एक जगह और 2 कनाल एक जगह। तो इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी जहाँ जहाँ पे हमारी स्ट्रीट लैंड किसी के कब्ज़े में है, इलीगल ऑक्यूपेशन पे है, उसको एनक्रोचमेंट उसकी हटाई जाए और स्टेट लैंड को जब अब्जॉर्व किया जाए। तो सर मेंढर प्रॉपर टाउन की ज़मीन है, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए 10 लाख रुपये मरला है यहाँ पे। अगर 6 कनाल का आप खुद ही लगा लो या उनकी ज़मीन लगभग बनती है। तो ये हमारी कोशिश यही रहेगी कि जिस चीज़ के पास भी इस तरह की नाजायज़ काबिज नाजायज़ है उनको सबको जो है वो देना जाए। पुल सिटी में पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने खसूसी मुहिम चलाकर दर्जनों चालान काटे। गैर कानूनी तरीके से सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करने वाले ड्राइवरों पर जुर्माना आयद किया गया। DSP हेडक्वार्टर नवाज अहमद, SHO रजीत सिंह और DTI शौकत अमीन की क़यादत में एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया गया ताकि लोगों को सड़क किनारे गाड़ियां खड़ी करने से जा सके। इस सिलसिले में ड्राइवरों को तनबीह की गई। आज मैंने और DSP हेडक्वार्टर साहब ने और SHO पुंछ ने जॉइंट मिल के यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ रोड की साइड पे लगती हैं, रॉन्ग पार्किंग लगती हैं, उनको चलान दिए हैं और लोगों को साथ साथ हिदायत हुई है कि वो रॉन्ग पार्किंग या रोड के साइड गाड़ियाँ ना लगाएं, जिससे जामिंग होती है और आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है। तो इसके साथ साथ हमने बस स्टैंड में भी जो ज्यादा गाड़ियाँ अंदर लगी हुई थी उनको हटा के दूसरे बस स्टैंड में भेजे। अभी तो हम थोड़ा फाइन कम कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो फिर फाइन ज्यादा होगा और गाड़ियाँ भी। मेढर के सरहदी इलाके बल्लोई में सड़क की खस्ता हालत की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सड़क में जगह जगह बड़े खड्डे पड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार महकमे के आला अफसरान से मसले को रुजू किया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लोगों ने मांग की है कि सड़क की जल्द अज जल्द मरम्मत की जाए। मुश्किलात में कितनी मुसीबत में ये लोग हैं, कितने किलोमीटर चल के ये जाते हैं। कम से कम यहाँ पे 16 से 18 किलोमीटर होगी जो ये रोड पैदल लोग जाते हैं। इनके लिए हमारे प्रधानमंत्री से और डिस्ट्रिक्ट DC साहब से पहुँच से और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि यहाँ से कम अपर के लिए बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, शेलिंग होती है, हर मुश्किल होती है। स्कूल के लिए कोई भी जो है यहाँ पे वो कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पे, इसलिए हम बहुत मुश्किल में फंसे हुए हैं। पहले उसको अर्थ कटिंग हुई थी, सिंगल मेटल हुआ था, बट काफ़ी अर्सा से उसको BT वगैरह। हथवाड़ा पुलिस ने चोरी की वारदात में मुलविस एक गिरोह को बेनकाब किया। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से भारी मिकदार में चोरी शुदा माल जब्त किया है। हथवाड़ा पुलिस को ये शिकायत मिली थी कि कई इलाकों में चोरों का एक गिरोह सरगर्म है जो रात की तारीकी में लोगों को लूट रहा है। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई और उनके कब्जे से में चोरी शुदा माल को जब्त किया गया। पिछले कई महीनों से चोरी की वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों की नींद हराम हो चुकी थी और इन लुटेरों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। लेकिन आज हंदवाड़ा पुलिस ने एक अहम कार्रवाई करके चोरों के एक बड़े नेटवर्क को बेनकाब कर दिया और इस सिलसिले में 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक अमल में लाई गई है। आने वाले वक्त में इस सिलसिले में मजीद गिरफ्तारियां जो है वो मुतवक्किल। रियाजपुरा पट्टन में इंडियन रिजर्व पुलिस के 21 बटालियन की जानिब से एक रोजा ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में तमाम अफसरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जवानों, अफसरान, सरकारी मामलात, पेशेवराना महारत दुरुस्तगी और टाइम बाउंड से मुतल्लिक जानकारी देना। इस मौके पर SP मुनीर अहमद और DYSP फारूक कवानी और दीगर माहिरीन ने प्रोग्राम से खिताब किया। मौसम सरमा कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगाता है। यही वजह है कि सयाह कश्मीर की जानिब मुतवज्जा होते हैं। ठंड के मौसम में कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाने में डल झील, हाउस बोट्स, रिमझिम बरसती बारिश और बर्फबारी एक अहम किरदार अदा करती है। लेकिन इन खूबसूरत हाउस बोट्स में बैठकर डल झील के नज़ारे नहीं मालूम कि अगर वक्त पर इन हाउस बोट्स की मरम्मत
तो उसका भारी नुकसान हाउस बोट्स के मालिकान को उठाना पड़ेगा। साथ ही झील की जीनत ये हाउस बोट भी मदऊम होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। आप देखिए फजा ज़ैनब की खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत, आदाब। कश्मीर में डल और नगीन दोनों ही झीलें सयाहों की तवज्जो का अहम मरकज हैं। इन झीलों में हाउस बोट्स की खूबसूरती चार चांद लगाती है। इसी वजह से सयाह इन हाउस बोट्स में क़याम करना ज्यादा पसंद करते हैं। सयाह यहाँ से हसीन वादियों का ऐसा नजारा करते हैं जो इनके लिए ही न भूलने वाला लम्हा बन जाता है। मूसलाधार बारिश और बर्फबारी की वजह से अक्सर इन हाउस बोट्स को वक्त पर मरम्मत की जरूरत पड़ती है। काफी अरसे से हाउस बोट्स की मरम्मत न होने की वजह से हाउस बोट्स के मालिकान को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके ऊपर जो बर्फ पड़ता है उससे हमको थोड़ा डैमेज होता है ऊपर वाले लकड़ का, तो कभी कभी ख़राब हो जाता है, उसको चेंजिंग करना पड़ता है। उसके लिए हम गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देते हैं, हमको वो लकड़ इसके रिपेयरिंग के लिए नहीं मिलता है। क्योंकि जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है हाउस बोट पे ऊपर चढ़ता है और वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि वो लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट है, मैं यहाँ ऊपर ब्रेकफास्ट आता हूँ, या अम्ब्रेला लगता है वहाँ पे, कुर्सियाँ लगता है, टेबल लगता है, कॉफ़ी पीता है, कोई अल्कोहल ड्रिंक वगैरह करते हैं, दे इंजॉय। मगर इस वक्त हम उनको बहुत स्टॉप करते हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर छत वाला वो तो लकड़ तो ख़राब हो गई है, किसी का पाँव नीचे जाएंगे तो उनको तो तकलीफ पहुँचेंगे, विच वी डोंट वांट। अब गवर्नमेंट को हमको इसको ज़्यादा से बहुत लुक आफ्टर करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ ब्यूटी ऑफ द कश्मीर हाउस बोट। अब गवर्नमेंट को इसके हमें क्या मदद करना चाहिए? मेन थिंग इज हमको लकड़ चाहिए। जिस वक्त एप्लीकेशन दे देंगे हमको वो लकड़ मिलना चाहिए विद इन मंथ। हाउस बोट्स की खस्ता हालत देखकर सयाह दूसरे मकामात का रुख करने मजबूर हो जाते हैं। हाउस बोट मालिकान का मानना है कि अगरचे इंतजामिया ने हाउस बोट्स में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी यानी टिम्बर पर सब्सिडी देने का वादा तो किया है, ताहम 5 माह गुजर जाने के बावजूद भी सब्सिडी नहीं मिली है। हाउस बोट वालों के लिए खुशखबरी कि टिम्बर फराहम होगा, लेकिन इस खुशखबरी के लिए अभी तक 5 महीने गुजर चुके हैं और अभी तक एक हाउस बोट के लिए भी नहीं। मैं कह रहा हूँ जो हाउस बोट यहाँ पे निगीन में ही 7 जल गए थे, नजर आतश हुए थे, आपने भी उसकी अक्सबंदी की है, उनके लिए अभी तक लकड़ी फराहम नहीं हुई है सब्सिडी के बेसिस पे। कि जब यहाँ पे विंटर में बर्फ़बारी होती है, और पिछले बार भी हम कई बार ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जब बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ की वजह से जो पोशीदा हालत में हाउस बोट्स होते हैं वो डूब जाते हैं। तो वो चीज़ मद्देनज़र रख के मैं आपकी इस न्यूज़ 18 चैनल की तरफ से यहाँ के जो गवर्नर साहब है और जो डिपार्टमेंट टूरिज्म उनसे गुजारिश करता हूँ एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ कश्मीर हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन कि वो जल्द अज जल्द हम हाउस बोट इंडस्ट्री के लिए सब्सिडी पे जो उन्होंने ऐलान किए थे टिम्बर फराहम करें। हाउस बोट्स ने इंतजामिया से अपील की है कि सब्सिडी की इनकी अर्जी पर तवज्जो दी जाए ताकि सयाहत के इस मौसम में इनके कारोबार पर मनफी असर न पड़े और इन शिकारा बोट मालिकान की माशी सूरत हाल भी बेहतर हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से फजा ज़ैनब की रिपोर्ट।